तो so जहाँ पे थे, तो ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन डेटा फ्लो हो गया, उसके बाद जब डेटा सीक्वेंस को टर्मिनेट करने जाओगे, it first gives acknowledgement one, and with that it will send fin finish one. So yeah, जैसे ही ये रिसीव करेगा, it takes that, okay, okay, I have to finish the data. Again, it will send the data and finish plus acknowledgement. Please try to understand. Finish plus acknowledgement it will sending, and then it will sending acknowledgement. Again, three-way handshaking methods के through ये connection terminate होगा. By first finish, then finish plus acknowledgement, and then acknowledgement. These are the three-way handshaking method again to terminate that particular thing. So three things actually we have already covered. That is first, connection establishment, connection data flow, and three-way handshaking method for data finishing that part. Here you can see fin segment consume one sequence number if does not carry the data. Definitely fin agar 1 hoga so it does not carry the data. Fin plus sequence number obviously does not carry the data but one sequence number because it has an acknowledgement. But iske baad jo hoga wo that is not the same similar way. यहाँ पे देखो सीक्वेंस नंबर x है, यहाँ पे भी सीक्वेंस नंबर x है. It does not, this acknowledgement does not have any type of sequence number. कोई सीक्वेंस नंबर नहीं होगा इसमें, बाकी ये दोनों में सीक्वेंस नंबर होगा. Now sliding window, what sliding window means? ट्रांसमिशन एफिशिएंट के लिए जो फ्लो कंट्रोल के लिए जो स्लाइडिंग विंडो है, वही स्लाइडिंग विंडो के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है. That actually already we have covered. That is in flow control we have already studied this sliding window protocol. Sliding window protocol selective request में कैसे sliding window लिया जाता है, उसके बाद stop and wait acting में sliding window क्या, go back in में क्या sliding window लिया जाता है. So that sliding window protocol it already have that particular thing. Actually this is adapting the sliding window. We are taking this. Okay. So that is the end of the process to process delivery, and now we are starting on the chapter 24, that is congestion control and quality of service. इसका बहुत ज्यादा पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे अभी. एससीटीपी मैं बार बार बोल रहा हूँ, CDP TCP is over. SCTP actually we will give the assignment to you. We will give the assignment to you ताकि वो assignment के थ्रू तुम वो सारे प्रोटोकॉल के बारे में समझ जाओ, और वो प्रोटोकॉल्स तुम्हें खुद पढ़ना होगा. वो प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड शॉर्ट नोट्स जनरली आता है एग्जाम में, और शॉर्ट नोट्स अगर नहीं भी आए नॉलेज के लिए भी शॉर्ट नोट्स देना, बिकॉज HTTP तुम जानते हो, SMTP तुम जानते हो थोड़ा बहुत. ये जो प्रोटोकॉल है वेल नोन प्रोटोकॉल्स. मेल ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, दैट इज HTTP. कोई भी पेज को डाउनलोड करने के लिए HTTP हम लोग यूज करते हैं. सो दैट थिंग एक्चुअली वेरी एफिशिएंटली वी आर यूजिंग डेली टू डेली, एंड वो चीज थोड़ा तुम्हारे नोन में भी है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि यह तुम्हें डायरेक्टली उस प्रोटोकॉल्स को पढ़ना है और शॉर्ट नोट तैयार करना है. नॉट वेरी ब्रॉडली यू नीड दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इसके लिए एक कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा. वो प्रोटोकॉल्स तुम्हें खुद पढ़ना होगा, एंड वो प्रोटोकॉल्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नहीं पढ़ाऊंगा. लास्ट टॉपिक में चला जाऊंगा इसके बाद, ये चैप्टर के बाद ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा. Now congestion control and quality of service, this particular two is also a task of transport layer. This chapter is actually ends that particular ट्रांसपोर्ट लेयर चैप्टर को ये चैप्टर एक्चुअली खत्म कर देगा. ट्रांसपोर्ट लेयर जो यूनिट है वो यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज कंजेशन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस. कंजेशन कंट्रोल मींस बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया है, वो दैट ट्रैफिक हाउ वी कैन हैंडल दैट. एंड उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस, दैट मींस परफॉर्मेंस, how we can increase the performance. That particular thing actually we are thinking here. तो कोई भी सर्विस मैं दे रहा हूँ, कोई भी पर्टिकुलर डेटा मैं दे रहा हूँ, कोई डेटा डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, कोई भी सर्विस मैं दे रहा हूँ,
उस सर्विस में कैसे हम लोग उसको और स्पीडी बना सके और रिलायबल बना सके, सिक्योर बना सके. So all these things, all these parts actually comes under this particular protocol. So this is also one task of transport layer, that is quality of service and congestion control. So basically congestion control, what congestion control tells? This congestion control tells basically how to handle the traffic. Basically how to handle the traffic. ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ये दो चीज आया है, कंजेशन कंट्रोल, एंड विद दैट वी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस. कंजेशन कंट्रोल मैं करूंगा तो ऑब्वियस बात है वी विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सर्विस. सर्विस का क्वालिटी बढ़ेगा, स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगा. So that is the main task of this particular congestion control and quality of service. So congestion control simply how to handle the traffic, and quality of service how to increase the reliability, how to increase the throughput, how to increase the speed, and all these things is comes under this particular quality of service. This particular quality of service. Okay, now see these things. Traffic descriptor. That means what traffic descriptor tells. ट्रैफिक कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ट्रैफिक को समझाने के लिए, ट्रैफिक क्या है, कैसी है सिचुएशन, उसको समझाने के लिए हम लोगों को एक ग्राफ का यूज किया जाता है. दैट ग्राफ इज कॉल्ड ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर. दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज कॉल्ड ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर. तो हियर यू कैन सी, ये ग्राफ मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, जिस ग्राफ के थ्रू ये ट्रैफिक जा रहा है. So this particular have maximum traffic. This is the data rate. Sorry, this graph have data rate of high. The data, this particular graph tells the data rate of that particular time. टाइम के साथ साथ क्या डेटा रेट जा रहा है. डेटा रेट जितना कम होगा, that means this is a high traffic. Data rate जितना कम होगा, that means it is a high traffic. बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा तो ऑब्वियस बात है डेटा रेट कम हो जाएगा. बहुत सारे कोलिजन आएगा, बहुत सारे कोलिजन आएगा, नॉइज आएगा, उसमें क्या होगा, बहुत सारे बाइट सब चीज डिस्ट्रॉय होगा. तो बेसिकली जब भी तुम्हें डेटा फ्लो जितना कम होगा, दैट मींस डेटा रेट जितना कम होगा, दैट हैव मच ट्रैफिक. So that's the way to find the traffic descriptor. कहाँ पे ट्रैफिक जितना ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा हाई जो पीक लिया है, that means peak data rate. This is called peak data rate. यहाँ पे सबसे कम ट्रैफिक है, इस टाइम पे सबसे कम ट्रैफिक आया है. एंड वो जो ड्यूरेशन है, दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड बर्स्ट साइज. दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड बर्स्ट साइज. दैट्स द ड्यूरेशन. ये जो ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा डेटा रेट था, उस टाइम के बीच में इसको बोला जाता है बर्स्ट साइज. एंड जो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हम लोग का नेटवर्क में स्पीड चेक करने के लिए तुम चेक करते हो ना, स्पीड बीट जो भी है तुम यूज करते हो, ऑनलाइन है. ऑनलाइन में डेटा स्पीड को चेक करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर तुमने यूज किया है. तो वहां पे वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर ग्राफ को ही फॉलो करता है, और वहां से देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि फॉर विच टाइम, कौन सा डेट में. वहां पे देखना एक ग्राफ बन के आता है नीचे, जब एक गोल गोल घूमता है और एक सुई रहता है, उसमें वो देते रहता है, एक पॉइंट रहता है, जिस पॉइंट पे पॉइंटर करते रहता है कौन सा स्पीड में तुम्हारा डेटा जा रहा है. बट उसके नीचे एक ग्राफ भी आता है. दैट ग्राफ इज कॉल्ड एक्चुअली दिस ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर. दैट ग्राफ इज कॉल्ड एक्चुअली दिस ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर. जिस ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर से हम लोग पता कर सकते हैं कि हाउ दिस ट्रैफिक कंडीशन नाउ. द कंजेशन कंट्रोल टेल्स कि ट्रैफिक जितना कम होगा उतना हाई डेटा रेट होगा. तो हियर we are
So how we can calculate this average? That is कितना, yes, कनेक्शन लेस हो गया था. So now it is okay, I think वॉइस अभी आ रहा होगा. So please इससे पहले जो ये जो हाई डेटा रेट समझाए थे, ये एवरेज डेटा रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? एक सेकेंड में जितना डेटा ट्रांसफर हुआ है, एक सेकेंड में जितना डेटा ट्रांसफर हुआ है उसको उस टाइम से डिवाइड करेंगे. दैट बिकम्स एवरेज डेटा रेट. अगर टोटल डेटा रेट अगर टाइम से डिवीजन हुआ, दैट बिकम्स एवरेज डेटा रेट. एंड वो जो हार्ड टाइम में तुम एक एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर सेकेंड में अगर कैलकुलेट करते चलो, दैट वी गेट दिस पर्टिकुलर ग्राफ. उस वजह से दिस पर्टिकुलर ग्राफ तुम्हें मिल जाएगा. तो यहाँ से तुम एवरेज डेटा रेट भी कैलकुलेट कर सकते. टोटल डेटा कितना गया है और टोटल टाइम कितना है उसको डिवाइड करेंगे तो दैट बिकम्स एवरेज डेटा रेट. एवरेज डेटा रेट तुम्हें यहाँ से नापनी. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा था जिसके चलते प्रॉब्लम हुआ है, कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक कम था जिसके चलते डेटा हाई गया है. नाउ there are three ways, actually three types of congestion control it have. Three types of congestion control it have. One is constant bit rate. अगर constant bit rate है that means ट्रैफिक वहां पे कंट्रोल है. तो ट्रैफिक प्रोफाइल्स इससे नापा जाता है. दैट मींस अगर फिक्स्ड डेटा रेट बिट रेट जा रहा है, हर बार ये इसी डेटा बिट पे जा रहा है, दैट मींस वहां पे कंजेशन कुछ है ही नहीं, नॉइज कुछ है ही नहीं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो दैट मॉडल्स इज अगेन टू टाइप्स. अगर वैरी बहुत ज्यादा कर रहा है, दिस इज बास्टी. और वैरी अगर बहुत कम कर रहा है, दिस इज वेरिएबल बिट रेट. These are the models, these are the profiles of traffic. These are the called three models, three profiles of traffic. That means अगर ट्रैफिक बहुत कम है तो फिक्स डेटा रेट जाएगा, फिक्स बिट रेट जाएगा. अगर ट्रैफिक बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है देन थोड़ा सा इधर उधर फ्लक्चुएट होगा. अगर वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हुआ, दिस इज कॉल्ड बास्टी मॉडल. So that means variable bit rate means fluctuate है but factual बहुत कम है. This is called variable bit rate model. And constant bit rate model means constantly we have the same bit rate continuously. We have same bit rate continuously. And if this is very high, that means this particular differentiate is very high, then it is called Basti model. Now this condition control also affects that particular network performance. That I have already told. It already affects to the network performance. Congestion जितना high होगा network performance उतना खराब होगा. Okay. So now how congestion occurs? Please try to understand. मान लो कोई एक टर्मिनल में या कोई एक राउटर में पर्टिकुलर बहुत सारे कुछ डिलेज है, जिस डिले के चलते वो डेटा फुल्ली ट्रांसफर हो नहीं पा रहा है. राउटर एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है, तो वहां पे राउटर जितना इनपुट आ रहा है उससे ज्यादा उससे स्लो वो आउटपुट दे रहा है. या हो सकता है जो रिसीवर एंड है वो थोड़ा स्लो है, जिसके चलते वो रिसीव थोड़ा सा स्लो कर रहा है, और जिसके चलते वो इस राउटर को भी धीरे धीरे डेटा सेंड करना पड़ रहा है, बट डेटा रिसीव हो रहा है बहुत फास्ट. तो वहां पे बहुत सारे जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के ज्यादा पैकेट पहुंच गया है राउटर के पास. जो राउटर का कैपेसिटी है उस राउटर के से कैपेसिटी से ज्यादा पैकेट वहां पे पहुंच गया है. तो दैट मेक्स द प्रॉब्लम, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम, एंड दैट क्रिएट्स दैट पर्टिकुलर data, that particular creates the congestion. So this particular thing is called congestion. That means जब भी तुम्हें ये हाई उससे कैपेसिटी से ज्यादा आ जाएगा then it have collision. और collision को ही बोलेंगे congestion. collision मुझे होना नहीं है, होने नहीं देना है. So that have again two control strategy. So that particular thing actually it have
The router have this input queue and output queue both, and इसके साथ बहुत सारे टर्मिनल कनेक्टेड है, राउटर से बहुत सारे टर्मिनल कनेक्टेड है. अब हाउ दिस टर्मिनल्स आर हैंडलिंग, ये मान लो जो इंटरफेस में यहाँ पे इनपुट क्यू है, यहाँ पे इससे आउटपुट हो रहा है, यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट हो रहा है. तो ये देखो यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ा स्लो है, तो यहाँ से जो इनपुट हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, वह यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है. तो दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम and that's why congestion occurs. Now congestion handle के लिए, congestion control के लिए we have three strategy, sorry two strategy. One is open loop and one is closed loop. One is open loop and another is closed loop. Open loop protocol and closed loop protocol. So we will study today only open loop protocol. We will study to only open loop protocol today. So open loop, what open loop tells? Open loop tells the prevention method, or closed loop tells after congestion happens, already congestion ho gaya hai, now how to handle. So open loop and closed loop. Open loop means still we have option to avoid that particular congestion. Congestion को avoid करने के लिए एक particular way है, that avoidance part is called open loop. Open loop algorithm. So that congestion control have two particular basic idea. One is open loop, another is closed loop. Open loop is prevention, closed loop is removal. Open loop is prevention and closed loop is removal. Open loop क्या करेगा, ये होने नहीं देगा, कंजेशन होने नहीं देगा, वो देखेगा कि अगर कंजेशन होने लायक है, then it will take some other it will do some other. So this particular open loop have again many strategies. Open loop has this 5 strategies and closed loop have this 4 strategies. Very basic thing it is, very easy topic actually it is. That thing actually open loop, we know everything, we know always this particular thing open everything. ये जो ओपन लूप पॉलिसी है ये हम जानते हैं, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, जस्ट उसको रिकैप करना है. Open loop means first strategy is retransmission policy. That means retransmission policy. Please try to understand. जैसे ये देखेगा कि हाँ अभी यहाँ पे कंजेशन होने लायक है, that means राउटर में मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर गया है, that will wait and retransmit it again. After that thing is happening, that processed, that means जैसे ही राउटर के पास जाएगा, राउटर के पास देखेगा कि okay, that is already full, that router is already full, so it will not send the data, it will wait and it will retransmit again after that follow through. So ये flow हो जाने के बाद it will wait and it will retransmit it. So that is called retransmission policy. Retransmission policy is very easy thing, very easy thing. जब भी ये आएगा कंजेशन होने लायक परिस्थिति होगा, so it will wait and it will retransmit it, it will not do it, it will not send it actually. Now window policy, please try to understand, that is actually it is happening in the flow control. We have already studied Windows policy. That means window size ऐसा लेना है ताकि कंजेशन नहीं होना है, कंजेशन नहीं होना चाहिए. जैसे कि मैंने देखा था विंडो साइज अगर तुम उस साइज से बड़ा लोगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था. जो नॉर्मल साइज लेने के लिए बोला है, जो एल्गोरिथम जिस पर्टिकुलर विंडो साइज लेने के लिए बोला है, उस विंडो साइज से ज्यादा तुम वैल्यू ले लिए, विंडो साइज ले लिए, that will create some problem, that will create some particular area problem in some particular area. So that thing actually gives the window size, that is window policy. Window policy means window sliding window protocol you will use and you will prevent that particular, sorry, not prevent, avoid that particular congestion. This is window policy. And acknowledgement policy, this is also again acknowledgement policy. जब तक acknowledgement मैं receive नहीं करूंगा, that means अगर मेरे पास
डेटा सेंड करने लिए हो गया है, अगर एक्नॉलेजमेंट मैं रिसीव नहीं किया तब तक मैं वेट करूंगा। ये बहुत अच्छा एक टेक्निक है जिससे थोड़ा स्लो हो जाता है प्रोसेस, बट ये बहुत अच्छा है, ये है कि कंजेशन नहीं होने का। ये प्रोसेस एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, दैट मींस जब तक मैं एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करूंगा तब तक मैं वेट करूंगा एंड विल सेंड इट, रिट्रांसमिट इट। तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो मैं डेटा सेंड करूंगा। तो यहाँ पे राउटर में जम नहीं देगा कोई कंडीशन, कोई पैकेट को राउटर में ये स्टोर होने ही नहीं देगा, बिकॉज ये पूरा सेंड हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा तभी हर जगह, हर टर्मिनल, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल टर्मिनल, हर टर्मिनल ये अगर हो करेगा तो डेफिनेटली कंडीशन होगा ही। दिस इज ऑन कंडीशन एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एंड देन डिस्कार्डिंग पॉलिसी। डिस्कार्डिंग अगेन, जैसे ही ये देखेगा कि ये होने लायक है, कंडीशन होने लायक है, इट विल डिस्कार्ड and again it will retransmit after that particular. So here this particular thing, retransmission policy does not have this discarding policy. Please try to understand. एक ही जैसा लग रहा है सुनने में सब चीज। retransmission policy में ये डिस्कार्ड नहीं होगा। retransmission में क्या होगा, वो सेंड ही नहीं करेगा, वेट कर लेगा। विंडो पॉलिसी में तुम्हें विंडो साइज एप्रोप्रिएट लेना होगा। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी में तुम्हें एक्नॉलेजमेंट जब तक रिसीव नहीं करेंगे तब तक हम डेटा सेंड नहीं करेंगे, नेक्स्ट डेटा सेंड नहीं करेंगे। डिस्कार्डिंग पॉलिसी में इट विल डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, सेंड करेगा बट डिस्कार्ड कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, राउटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज द डिस्कार्डिंग पॉलिसी। दैट मींस जैसे ही ये देखा राउटर के पास एक्नॉलेजमेंट ये हो गया, फुल हो गया, इट विल डिस्कार्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, बट ये डेटा सेंड कर रहा है, सेंडर एंड डेटा, रिसीवर एंड डेटा, सेंडर एंड डेटा सेंड कर ही रहा है, but router will not receive that particular thing, will discard that particular thing if congestion होने के पे आएगा। कंजेशन उसके पास जैसे ही भीड़ जमते हुए आएगा, it will discard करते रहेगा एंड वो बोलेगा कि बाद में भेज दिया। जैसे ये पूरा कंजेशन ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद फिर ये बोलेगा ओके you can send it now. This is discarding policy. And admission policy means very clearly you have to understand. Admission policy means it will send a control message that takes the situation of that particular device. That means ये device क्या बोलेगा कि okay, I will send a control data to all of you when I have done the task. That means when I am free, जैसे ही मैंने देखा सबको मैंने दिया 3 पैकेट, 3-4 को मैंने दिया, चारों एक पैकेट मेरे पास भेज दिया। मैं जब तक वो बोलूंगा, मैं जब तक दिन में भेजूंगा नहीं कुछ भी, तब तक आप भेजिएगा। तो ये डेटा प्रोसेस करने के बाद ये दिस इज कॉल्ड एडमिशन पॉलिसी। इट विल अगेन सेंड ए कंट्रोल बिट टू द सेंडर कि प्लीज आप भेज सकते हैं। एक कंट्रोल बिट डेटा सेंड किया है और उसके बाद वो फिर डेटा वापस किया, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एडमिशन पॉलिसी। इज द थिंग क्लियर टू यू? दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एडमिशन पॉलिसी। इज द थिंग क्लियर टू यू एवरीवन? तो अभी यही तक छोड़ देते हैं। क्लोज लूप प्रोटोकॉल we will do the next. क्लोज लूप प्रोटोकॉल we will do the next. So क्या क्या मैंने पढ़ा है, क्या क्या मैंने आज पढ़ा है? One thing, so first this is UDP we have already covered, TCP we have already we have discussed today. So here TCP services, how TCP will handle the buffer, that is the first part we have studied. After that, what is segment we have studied, what is the header part we have studied, how it is controlling this particular 6 bit is controlling this particular traffic, इस particular error and flow control को कैसे ये control कर रहा है, this 6 bit, that is a control bit part, and how these are establishing the connection with three handshaking method, how it will send the data, and again please try to understand again, this particular sending the data is happening according to the flow control what you have selected, according to that particular flow control method
what you are selecting. That means अगर go back n से करोगे तो go back n का तरीका यहाँ पे follow होगा, अगर selective repeat करोगे तो selective repeat का तरीका यहाँ होगा. So that totally depends on that particular algorithm या protocol जो तुम यूज करोगे. That data transfer happen and then termination connection कैसे ये terminate को connect करेगा, terminate करेगा connection को, and after that it finish the again 3 handshaking method it will use, it will finish the data. And then we have already covered this congestion control protocol. Congestion, what is congestion control, how we can control this particular two thing actually it congestion control protocol have, that is open loop and closed loop. Open loop and closed loop. Open loop have this particular thing, so how congestion will happening, that is already covered. We are covered, and then we have covered this particular policies for open loop, that is to avoiding that particular congestion. कंजेशन अवॉइड करने से पहले मुझे क्या क्या ये लूप जरूरत पड़ेगा, क्या क्या पॉलिसीज मुझे अपनाना है ताकि वो ना हो. दैट इज द थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टुडे, एंड नेक्स्ट डे वी विल डू द क्लोज लूप प्रोटोकॉल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, आई थिंक. ओके, थैंक यू. थैंक यू.